वकीलों को भी जो है पश्चिम बंगाल के अंदर डर लगता है। अगर हम डर जाएंगे ना तो समस्त पूरा समाज मर जाएंगे। एज अ लॉयर दिस इज़ आवर ड्यूटी टू रिप्रेजेंट द सोसाइटी एज अ फ्री फाइंड मेंटेलिटी। एक समय लोग समझते हैं व समझते थे व्हाट इज़ द फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया। लोग उसका एग्जाम्पल देते थे कि बिहार जंगल राज किसको कहते हैं, ज़रा बिहार को देखो। और आज उस जगह ले रहे हैं बंगाल। ये जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार के रूप में जो केस है ये तो वैराइटीज़ रूप में है। 498A है, रेप है, 354 मतलब आप कहें मॉलेस्टेशन है, यहाँ पे बहुत सारे हैं। महिला रिपोर्ट नहीं करते, डरते हैं। अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 खबर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है यह बिल्कुल तय हो चुका है। पश्चिम बंगाल में इस बार क्या होने वाला है यह भी तय हो चुका है, लेकिन उससे पहले सत्ता और सियासत में बैठी ममता बनर्जी पर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, क्या उन सवालों में जो है कुछ ना कुछ राज छिपे हैं? क्योंकि युवा जो है रोजगार चाहता है, बेरोजगार जो है रोजगार चाहता है, वहीं महिला जो है वो सशक्त होना चाहती है, महिला जो है अपना सुरक्षा चाहती है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में लगातार कई अन्य तरीके के मुद्दे भी उठ रहे हैं। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी को एतराज है। बांग्लादेशियों पर नाराजगी जताते हुए ममता बनर्जी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक चली गई, उसके बाद से सवाल उठे कि क्या सच में ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की आम जनता का फिक्र सता रहा है, या फिर जो है उन्होंने ये चुनाव को लेकर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में एक दौरा किया था। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हम पश्चिम बंगाल के वर्धमान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर हैं और यहां पर जो है हमारे साथ तमाम वकील साहब हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि इस बार चुनाव में इन लोगों का भी क्या मुद्दा रहेगा, एसआईआर को लेकर क्या सोचते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर क्या सोचते हैं। दादा, सबसे पहले आपका नाम जानूंगा। सदनता, मेरा नाम सदनता। क्या कहेंगे दादा, किस तरीके का माहौल है इस बार पश्चिम बंगाल में? लड़ाई खूब जोर হবে। दोनों जो पार्टी है ना, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी, वो दोनों पार्टी में लड़ाई खूब जोरदार होगा। एसआईआर ये तो एर আগেও হয়েছে, এখনো হচ্ছে, কিন্তু এর ভিন্ন রকম প্রকৃতি হচ্ছে। এসআইআর অবশ্যই হওয়া উচিত। আমাদের দেশে যারা বাস করবে, যাদের 18 বছর বয়স হবে, তারা তাদের মতামতের মধ্য দিয়ে সরকার গঠন করবে, প্রতিনিধিদের চয়েস করবে, এটাই নিয়ম। কিন্তু যেটা মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে বর্তমান এসআইআরে, যেটা আমার মনে হয়েছে যে পড়শি দেশ, বিশেষ করে বাংলাদেশ, সেখান থেকে পার্টিকুলার একটি ধর্মাবলম্বী মানুষ, তারা বিভিন্ন রকম উদ্দেশ্য নিয়ে রাতের অন্ধকারে বা যারা পাহারা দেয় তাদেরকে ম্যানেজ করে আমাদের পশ্চিমবাংলায় ঢুকে যাচ্ছে। ঢুকে যাওয়ার পর যারা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল, তাদেরকে ম্যানেজ করে ভোটার লিস্টে নাম তুলছে, বিভিন্ন রকম কাট করছে, সরকারি অনুদান পাচ্ছে। সেটা তো ঠিক নয়। এই বাংলায় যারা বরাবরে বসবাস করে, যারা জন্মগতভাবে আমাদের বাংলায় বসবাস করেছে, তারাই কেবলমাত্র আমাদের এই ভারতবর্ষে বা বাংলায় তারা থাকবে। একটা পার্টিকুলার যে এই এসআইআরের মাধ্যমে পার্টিকুলার একটা ধর্মাবলম্বী মানুষ তারা বাংলাদেশ থেকে এসে কেবলমাত্র ধর্মীয় কারণে নয়, কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমাদের জনবিন্যাসটা, বাংলার জনবিন্যাস নষ্ট করে দেওয়ার স্বার্থে যারা আমাদের এই বাংলায় ঢুকে এসআইআরের মাধ্যমে বিভিন্ন ভুয়ো নথিপত্র দাখিল করে যারা ভোটার লিস্টে নাম তুলতে চাইছে, তাদেরকে এই নির্বাচন কমিশন যেভাবে
ছাঁকনি করছে তাদেরকে বাদ দেওয়ার জন্যে, এটা অবশ্যই সাধুবাদ। কেন কোনোভাবেই আমরা আমাদের ভাগ্য আমরা নির্ধারণ করব, আমাদের ভাগ্য অন্য কেউ নির্ধারণ করবে না, অন্য কোনো দেশ, অন্য কোনো রাষ্ট্র নির্ধারণ করবে না। তাই এসআইআর ভালোভাবে হচ্ছে, ভালোভাবে হোক। তাতে বিচার ব্যবস্থাকে সুপ্রিম কোর্টে সওয়ালের মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থা যে হস্তক্ষেপ করেছে এবং নিজের দায়িত্ব তুলে নিয়েছে নিজের কাঁধে এসআইআর করার জন্য, এটাও সুপ্রিম কোর্টকে আমরা সাধুবাদ জানাবো। আমরা বাংলাভাষী, আমরা চাই এসআইআরের মাধ্যমে যারা সত্যিকারের ভারতীয়, সে পাঞ্জাবে যারা বাস করে বাংলায় আসতে পারে, যারা উড়িষ্যায় বাস করে তারা তাদের যোগ্যতা এবং তাদের অধিকার আছে বাংলায় যদি স্থায়ী বসবাস করে তারা ভোট দেওয়ার। কিন্তু একজন বাংলাদেশি মানুষ, একটা বিশেষ ধর্মাবলম্বী মানুষ, কেবলমাত্র আমাদের জনবিন্যাস পাল্টে দেওয়ার জন্য বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতবর্ষে এসে, আমাদের বাংলায় এসে ঘাঁটি গাড়বে, বিভিন্ন অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত থাকবে, তারা আমাদের এখানে ভোটাধিকার করবে, ভোটাধিকার পাবে, এটা কখনোই কাম্য নয়। दादा क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मैं आशीष पाल इस वर्धमान कोर्ट के एज एन एडवोकेट हूँ। जो विषय आपने रखे हैं, हमारे सेक्रेटरी, इस बार एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी जो विषय रखे हैं, इस विषय तो पूरा के पूरा समर्थन योग्य है, क्योंकि वी आर ऑल द इंडियन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वी लीड आवर सोसाइटी। तो इसके कारण अगर बाहर से कोई आते हैं जिसका संविधान अनुसार कोई आइडेंटिटी नहीं है, संविधान अनुसार जिसने इस भारत के नागरिक का होने का लायक ही नहीं है, अगर उसका नाम ये हमारे जो इलेक्शन प्रोसीड्योर है, इलेक्शन प्रोसीड्योर में आएगा और वो इलेक्शन प्रोसीड्योर में निज को संभालते हुए हमारे प्रतिनिधित्व चूज करेगा, ये तो है ही नहीं सकते। ये बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये तो हम समर्थन कर ही नहीं सकते हैं। और हमारे ये एज ए एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने जो सुपरविजन लगाया गया है, इसमें किसी को जलन हो ही सकता है। तो जिसका जलन हो रहा है, मतलब वो ये एसआईआर के अलावा जो सिस्टम चल रहा था उसी से लाभ उठाने वाले थे और लाभ उठा रहे थे, और इस लाभ को जब कटौती चल रहा है तो उसका जलन तो उसका होगा ही। सर एक सवाल है, अगर एसआईआर को लेकर जिस तरीके से ममता बनर्जी प्रेशर बना रही थी, अगर ये एसआईआर रुक जाता तो इससे ममता बनर्जी को और टीएमसी को क्या फ़ायदा होता? देखिए, इस बंगाल में एक प्रोसीड्योर था, एक समय लोग समझते हैं व समझते थे व्हाट इज़ द फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया। लोग उसका एग्जाम्पल देते थे कि बिहार जंगल राज किसको कहते हैं, ज़रा बिहार को देखो। और आज उस जगह ले रहे हैं बंगाल। बिहार पीछे पड़ गए हैं, बंगाल आगे चल गया है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अगर आज के दौर में जंगल राज किसी को देखना है तो वो बंगाल को देखे? अब 2021 का जो इलेक्शन पीरियड था, इलेक्शन के बाद पोस्ट पोल वायलेंस के रूप में जो एग्जाम्पल इस बंगाल के जो एग्जाम्पल पूरा देश देखे हैं, तो इस एग्जाम्पल को देखते हुए आप इसको क्या कहेंगे? जंगल राज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देखो, जाति का रूप से ये बिहार में वही अलग कुछ देश में होता है, लेकिन राजनीति के रंग से ये बंगाल छोड़कर और कहाँ हो रहा था व होता था, ये बिहार छोड़कर कोई भी थे। आप उस जगह में कौन ले रहा है? बंगाली ले रहे हैं ना, तो बंगाल आगे चल रहा है ना। अगर आप पूछे कि बंगाल आगे चल रहा है, हम लोग बोलेंगे हाँ बंगाल आगे चल रहा है,
बिहार को भी पीछे दे रहा है। अगर आप देखिएगा जो महिलाओं का जो सुरक्षा के नाते जो परिस्थिति है, ये महिला की सुरक्षा के विषय में बंगाल कहाँ थे, अब आज बंगाल कहाँ है, आगे चल रहा है। अच्छा सर, एक मेरा अप्रॉक्स छोटा सा एक अनुमान मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर बात की जाए जिस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठता है, चाहे वो आरजीकर का एक बड़ा घटना हो, दुर्गापुर का एक बड़ा घटना हो, उसके बाद एक सवाल उठता है कि हम इस वक्त जिस कोर्ट में बैठे हैं, इस कोर्ट में महिलाओं को लेकर अमूमन एक दिन में या फिर जो है एक साल में कितने केस आते हों? देखिए, ये जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार के रूप में जो केस है, ये तो वैराइटीज़ रूप में है। 498A है, रेप है, 354 मतलब आप कह मॉलेस्टेशन है, ये तो वैराइटीज़ वे होता है ना। तो इसका अगर मानते हैं कि ये पूरा ये रिपोर्ट यहाँ पे नहीं है, लेकिन केस है, केस है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि महिला रिपोर्ट भी कर नहीं सकते हैं। ऐसा भी है यहाँ पे जो आउसग्राम है, भातार है, यहाँ पे बहुत सारे हैं, महिला रिपोर्ट नहीं करते, डरते हैं। अच्छा। थाना में रिपोर्ट नहीं है, अगर थाना में नहीं रहेगा ऐसे एडवोकेट हम क्या कर सकते हैं? आएगा तब न लड़ेंगे, नहीं आएगा तो कहाँ से लड़ेंगे? तो ममता बनर्जी की सरकार में महिला सुरक्षा जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा तो है ये नारी सुरक्षा, ममता महिला की जो सुरक्षा की विषय है, ये तो एक मुद्दा है ये। दादा SIR को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि ममता बनर्जी नहीं मानती है कि पश्चिम बंगाल के अंदर घुसपैठिया है। उनका कहना है कि अदर स्टेट में अगर बंगाल के लोग जाते हैं तो उन्हीं को जो है बांग्लादेशी बना देती है ये भाजपा सरकार। देखिए, एज अ लॉयर हम यही कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार में बातचीत होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार में जो प्रोसीड्योर है, जैसे एक नागरिक, ये तो हमारे जो सिटीजनशिप एक्ट जो है वहाँ पे तो बोला मैंने है ये जो रिपोर्ट, जब सिटीजनशिप कार्ड भी होना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। अगर ये करा हुआ था, ये हमारा पे अगर लागू हो गया होता तो ये सवाल तो नहीं उठता था ना। तो 70 साल हो गया, 75 साल के ऊपर हो गया है, सिटीजनशिप कार्ड तो हुआ ही नहीं। अगर हम तो पूछे जो व्हाट इज़ माई द आइडेंटिटी कार्ड अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट, आप बोलिएगा वोटर कार्ड नहीं है, आधार नहीं है, एक्सेप्ट पासपोर्ट, कुछ भी नहीं है एज द सिटीजनशिप कार्ड। हम भी पूछे थे, बोले कि इलेक्शन कार्ड तो इलेक्शन कार्ड है, सिटीजनशिप कार्ड कहाँ है? आधार वो भी नहीं है, पैन वो भी नहीं है, तो मेरा सिटीजनशिप कार्ड है ही कौन सी? कुछ भी नहीं है, एक्सेप्ट पासपोर्ट में सिटीजनशिप प्रूव होता है। वोटर में मैं इलेक्शन में वोट दे सकता हूँ, वो कार्ड में मेरा ये है। पैन में इनकम टैक्स के रिपोर्ट में है, तो सिटीजनशिप कार्ड है कहाँ? इतने साल हो गए, 75 साल हो गए। अब अगर अफगानिस्तान में देखिए, आप बांग्लादेश में देखिए, अमेरिका में देखिए, वो तो पूरा ऊपर वाला देश है, नीचे वाला देश को भी मानते हैं जो अफगानिस्तान बांग्लादेश, उसमें भी सिटीजनशिप कार्ड है। तो भारत में है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो सिटीजनशिप कार्ड भी नहीं है, तो हु इज़ द सिटीजन ऑफ इंडिया, हाउ इट विल बी डिटरमाइंड? अच्छा सर, हर चुनाव में इस तरीके के खबर आते हैं। इस बार हम हर जगह घूम रहे हैं, हर जगह आम जनता से रूबरू हो रहे हैं। जनता के मन में डर बैठा हुआ है। वो कहते हैं कि अगर हम किसी एक पार्टी का फेवर करेंगे तो जो जीतने वाला पार्टी होगा वो पता नहीं चुनाव जीतने के बाद हमारे साथ क्या करेगा। ये आप पूछ रहा है बंगाल के विषय में, आप पूछ रहे हैं ना जी। तो मैं पहले वाला जो बात बोला था जंगल राज की जो विषय, एग्जाम्पल तो आप ही दे रहे हैं, हम दे रहे हैं क्या? आप ही बोल रहे हैं। जब हम किसी को वोट में जिताएंगे तो दूसरा वाला हमको क्या करेगा? अगर हम जीत नहीं पाए तो जो जीते हैं वो हमारे साथ क्या तो सुख करेगा? हम तो नहीं बोले हैं ना, आप पूछे हैं ना, तो आप ही तो दे रहे हैं ना एग्जाम्पल रिगार्डिंग द जंगल राज। नहीं, जो चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए आप जो है वकील साहब हैं, रूबरू होते हैं रोज़ ऐसे केसों से, तो मेरा मानना और जानना बेहद ज़रूरी है, आम जनता को भी सुनाना बेहद ज़रूरी है कि क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो है जब लोकतंत्र की बात होती है
तो क्या इलेक्शन खत्म होने के बाद वो लोकतंत्र जिंदा रहता है? फिर भी आप हमको एक ही बात पूछ रहे हैं। ये आम जनता की भय है, ये आप भी बोले हैं। भय का कारण क्या है? जंगल राज है इसलिए भय है। अगर मान जंगल है, बाघ की डर है, जंगल है जो मैंने क्या बोलता है हायना, इसका डर होता है। अगर सिटीजन बा ये सिविलाइज्ड सोसाइटी रहेगा, डर थोड़ी रहेगा क्या? सिविलाइज सोसाइटी में कभी डर होता है क्या? सिविलाइज सोसाइटी होता है तो डेमोक्रेसी होता है। अगर सिविलाइज सोसाइटी नहीं रहेगा, जंगल राज रहेगा, उसी में भी डर का भय होता है। लेकिन ममता बनर्जी तो डेमोक्रेसी की बात करती है हमेशा। आपने पूछा आम जनता की भय के बारे में, तब आप जनता आपको भय के बारे में बोले हैं, तो पूछिए ना ममता जी को, आम जनता क्यों ऐसे बोल रहा है? आप डेमोक्रेसी का बात कर रहे हैं तो आम जनता क्यों बोल रहे हैं ये सब बात? एडवोकेट तो वो तो बोलेगा ही। आम जनता की आवाज़ सुनो पहले, उसके बाद मेरे बात सुनना। तो आम जनता की है जो भय है, डर है, तो मैं तो क्या बोलूँगा? अगर जंगल राज नहीं है तो डर कहाँ से होगा? जंगल राज है, उससे जंगल राज से मुक्त होना है। बंगाल को अभी ऐसे धीरे धीरे बंगाल की अपना स्थिति में जो बंगला संस्कृति, बंगला परंपरा जो है वो समझ आ रहा है, और वह धीरे धीरे वो रियलाइजेशन आएगा और डर से बाहर जाने का कोशिश भी कर रहा है जनता। दादा क्या कहेंगे, जंगल राज से जो है पश्चिम बंगाल की जनता कैसे निकले? এই আমাদের যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভোটের মাধ্যমেই হবে। ভোট আমাদের বিহারে হয়, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা হয়। এই তো উড়িষ্যায় ভোটের মাধ্যমে এই প্রথম ভাজপা সরকার এলো উড়িষ্যায়। তা উড়িষ্যায় তো এই ধরনের ইলেকশনকে কেন্দ্র করে খুন খারাপি হয় না। এই তো বিহারে ভোট হলো, বিহারে নীতিশ কুমার ভাজপা গঠবন্ধন ক্ষমতায় এলো, এখন এই ধরনের হিংসা হয় না, ছোটোখাটো দুটো একটা ঘটনা হয়। কিন্তু আমাদের বাংলায় 5 বার 7 বার 8 বারও যদি ভোট হয় তাহলেও হিংসা হবে, এবং এই হিংসায় শতাধিক লোক, এমন কোনো ইলেকশন নেই কি পঞ্চায়েত কি অ্যাসেম্বলি কি লোকসভা যেখানে শতাধিক লোক মারা যাচ্ছে না। তা এই যে মমতা দিদি এই যে এত বলছে যে আমি অনেক উন্নয়ন করেছি, আমি মহিলাদের টাকা দিয়েছি, আমি এই যুবকদের ভাতা দিচ্ছি, সব ঠিক আছে, ওটা একটা উন্নয়নের অঙ্গ। কিন্তু এত যদি উন্নয়ন হয় তাহলে ভোটের লাইনে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যাতে দাঁড়ায় সেটার ব্যবস্থা না করে যাতে ভোট দিতে না পারে তার ব্যবস্থা কেন করছে? আমি যদি কাজ করি তো আমি তো চাইবো যে পার্সেন্টেজ 70 জায়গায় 80% মানুষ ভোটে অংশগ্রহণ করুক, 80%-এর জায়গায় 95% মানুষ ভোট দিক। কিন্তু এখানে তো উল্টো হচ্ছে, ভোটের লাইনে দাঁড়ালে বোমা চার্জ হচ্ছে, সেখানে মানুষ মারা যাচ্ছে। ভোট হওয়ার আগে প্রচারে 20-25 দিন আগেকার যে প্রচার, সেখানে বহু রাজনৈতিক খুন হয়ে যাচ্ছে। এটা বন্ধ হওয়া দরকার, সবার জন্যই দরকার। একটা সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ আসুক বাংলার বুকে, যেখানে মানুষ সবাই মিলে তার নিজের মত অনুযায়ী, তার নিজের চয়েস অনুযায়ী ভোট কেন্দ্রে যাবে, ভোট দেবে। এমন একটা ব্যবস্থা সবাইকে, বিচার ব্যবস্থা, ইলেকশন কমিশন, সমস্ত রাজনৈতিক দল, আমরা যারা সাধারণ মানুষ আছি, সবাইকে একভাবে ওই সাধারণ মানুষ সবাই নির্ভয়ে যে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেবে, দিয়ে তাদের মতামতের মাধ্যমে তাদের প্রিয় সরকার গঠন করবে, এটাই হওয়া উচিত। दादा एक सवाल आपसे कि क्या वकीलों को भी जो है पश्चिम बंगाल के अंदर डर लगता है, जिस तरीके का भी माहौल है? देखिए, ये जो बात आप बोल रही है ना, जो डर के विषय में, अगर हम डर जाएंगे ना तो समस्त पूरा समाज मर जाएंगे। तो ये हमारा ड्यूटी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ होता है। एज अ लॉयर, दिस इज़ आवर ड्यूटी टू रिप्रेजेंट द सोसाइटी एज अ फ्री फाइंड मेंटेलिटी। मेरा कहने का मतलब आपको मैंने जो हम बोलना चाहते हैं कि समाज में
लॉयर को रहना चाहती है, ये इज़ अ नोबेल प्रोफेशन। तो इसके कारण समाज के हमारे जो लीडिंग देना है, तो एज ए लॉयर ये हमारा ड्यूटी है। जितना भी डर का माहौल हो रहा है, लेकिन फिर भी समाज को दिखाना है, बोलना भी है, मत डरो। ये जो हमारे दादा बोल गया ना, कि हम क्या चाहते हैं, डेमोक्रेसी में क्या है, मेरा मतदान जो है से कहने वाली मौत है, जो भी हो, फ्री माइंड में हम दें। इसका जो अरेंजमेंट, और इसका जो अरेंजमेंट सुप्रीम कोर्ट, SIR, इलेक्शन कमीशन अपने अपने तरीके से कर रहा है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल के जो इम्प्लीमेंटेशन है वही तो है ना। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ पे सर एक मेरा सवाल है, कई जगह पर विधानसभा के अंदर हमें ये सुनने को मिला कि जिस दिन इलेक्शन होते हैं, जिस दिन वोटिंग का डेट होता है, कई जगहों पर जो है हिंदुओं को घर से ही नहीं निकलने दिया जाता, उन्हें वोट देने नहीं दिया जाता। तो फिर वो वोट डालेंगे कैसे, अपने मत का अधिकार दिखाएंगे कैसे? देखिए, अगर आप ये बात बोलेंगे जो हिंदू जो लैंग्वेज आप बोले हैं, मैं इसमें हिंदू लैंग्वेज हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिटीजन सभी होता है। ये जो बाहर के आदमी जो है, जो देखिए जो आदमी मर गया है उसका नाम इलेक्शन के लिस्ट में है, जो यहाँ पे नहीं रहता है उसका नाम लिस्ट में है, जो बाहर से आए हुए हैं इसका नाम लिस्ट में है। ये जो नाम है, इस नाम को वोट में हम लोग इंट्रोड्यूस करवाएंगे, यही तो कारण जंगल राज। और अगर हम इसको बाहर निकालना चाहते हैं, SIR के कारण जो मर चुके हैं इसका नाम बच जाए, जो डिलीट को होना चाहिए उसका नाम उसको होना चाहिए, ये जो प्रोसीडियर के कारण SIR हो रहा है, इस महल के लिए जो सिटीजन है वो वोट दान करे, जो सिटीजन है वो वोट दान करे। अच्छा सर, एज अ लॉयर, जब ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच जाती है, सुप्रीम कोर्ट में चली जाती हैं, तब आप इसे किस तरह देखते हैं कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट था, या फिर जो है सचमुच में वो उन्हें पश्चिम बंगाल की जनता का चिंता है इसलिए वो पहुंच गए? एक लॉयर जहाँ पे जाते हैं हम उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ। एक काला गाउन लेकर जो दौड़ाते हैं, मैं उसको कभी डिसऑनर नहीं कर सकता हूँ, मैं इसको ऑनर ही करूँगा। लेकिन उनका मोटो क्या है, इंटेंशन क्या है, ये आप विचार करें। क्या कहेंगे सर, किस तरह देखते हैं आप इसे? আরজিকর কাণ্ড, আরজিকর শুধু বাংলা নয়, গোটা ভারতবর্ষকে নাড়িয়ে দিয়েছিল আরজিকর কাণ্ড। ও এক ডাক্তার লেডি সারা দিন রাত সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিয়েছে। রাতের শেষে ভোরের দিকে তাকে ধর্ষণ করে খুন করে দেওয়া হলো। ওই আরজিকর কাণ্ডে গোটা পশ্চিমবাংলায় সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেছিল। আরজিকর কাণ্ডে যাতে CBI এনকোয়ারি না হয় তার জন্য দিদি লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা খরচা করে সুপ্রিম কোর্টে বাধা দিয়েছিল। এই যে ডিএ তো সরকারি যারা কর্মচারী আছে, এটা তাদের হকের পাওনা। আমি তো আমার হকের পাওনা আশা করবো আমি পাবো। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে, ডিএটা আমরা পাবো, অ্যানাউন্স হবে, কিছু আমাদের সুরা হবে। তাই ডিএ যাতে না দেয়া হয় বা ত্বরান্বিত না হয়, পিছিয়ে দেওয়া হয়, তার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচা করে স্বনামধন্য লয়ারদের সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করানো হয়েছে। সেখানে ওইসব কাণ্ডে ন্যাচারাল জাস্টিস যাতে না পায় তার জন্য সরকারের পয়সা খরচা করা হয়েছে। আর এখানে ন্যাচারাল জাস্টিস যাতে পায় সেটা আটকাবার জন্য করা হচ্ছে। আর দিদি যেটা করেছে, উনি লয়ার এটা আমরা জানি, কিন্তু ওনার এই গাউন পরে ওনার ওই সওয়ালটা আমরা সমর্থন করলেও উনি এটা সম্পূর্ণ পলিটিক্যাল মোটিভেটিভ হয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হবে উনি সুপ্রিম কোর্টে গেছেন। আচ্ছা ধরুন তো, শুধু মমতা দিদি নয়,
বিভিন্ন পার্টির বিভিন্ন নেতা আমাদের এই আইনজীবী পেশায় আছেন, তারা যদি ওই সব বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যখন সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল হবে, তা বিভিন্ন জায়গার নেতা মন্ত্রী বিরোধী দলনেতা তারা যদি লয়ার হয়েও গাউন পরে সুপ্রিম কোর্টে যে মুভ করে, তাহলে কি সুপ্রিম কোর্টের পরিবেশ পরিস্থিতিটা সুন্দর এবং থাকবে? আমার মনে হয় থাকবে না। তাই যে জিনিসটা আমি করছি সাধারণ মানুষের জন্য করা আর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে করা, দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে। ওই দুটোর মধ্যে তফাৎ যদি আপনি করতে পারেন, তাহলে মমতা দিদির উদ্দেশ্যটা ওই তফাৎ হয়ে যাবে। আমার মনে হয়, আমি বিশ্বাস করি উনি যেটা করেছেন সাধারণ মানুষের জন্য নয়, নিজের পার্টিকে বাঁচাবার জন্যে, একটা রাজনৈতিক গিমিক তৈরি করবার জন্যে উনি এটা করেছেন। दादा एक सवाल और देखिए, आपने कहा कि भाई पश्चिम बंगाल की जनता जो है पश्चिम बंगाल की है, वो किसी धर्म की नहीं है, लेकिन हुमायूं कबीर क्या कर रहे हैं? वो जो बाबरी मस्जिद के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, जो मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, उसे आप किस तरह देखते हैं? हुमायूं कबीर से पहले भी यार एक घटना है, शायद आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा। बंगाल के ये बनर्जी एंड कौंग के जो नेता है, इसने बताया था आधा बांग्ला उर्दू छा गया है, बाकी पूरा बांग्ला उर्दू छा जाएगा। ये जो लैंग्वेज है, ये जो कोड है, ये कहने का मतलब क्या है? छा जाएगा मतलब क्या है? तो बांग्ला की नहीं रहेगा क्या? बांग्ला नहीं रहेगा? बांग्ला भाषा जो है ये नहीं रहेगा, ये विलुप्त हो जाएगा। बांग्ला में बांग्ला भाषा विलुप्त हो जाएगा क्या? तो माँ माटी मानुष, ये जो 3 शब्द है, ये तो बांग्ला है, ये भी बांग्ला कहने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि उर्दू छा जाएगा। अगर इस दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे ना, तो ये क्या बोलेंगे, उनका दृष्टिकोण है। उसी तरह हुमायूं कबीर जी जो है, उनका भी यह दृष्टिकोण है, वही उर्दू छा जाएगा, फॉलोअर बाबरी हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे मस्जिद बनाना है, कोई बात नहीं है। बांग्ला बहुत स्वीट लैंग्वेज, उर्दू यस इट इज़ ऑल्सो द स्वीट लैंग्वेज, लेकिन साथ में रहना चाहिए, एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हुए रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन कैसे रहेगा सर? वही हुमायूं कबीर जो है, आपका जो कहने का मतलब है, जो नहीं चाहते हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बंगाल की संस्कृति का विरोध है, ये विरोधी है, इसको डिमोलिश होना चाहिए। जब बाबर पश्चिम बंगाल आया नहीं, जब बाबर ने कभी यहाँ मस्जिद का निर्माण किया नहीं, तो क्या ये हुमायूं कबीर को इस तरीके से मस्जिद बनाना चाहिए, और इससे क्या 2 धर्मों के बीच में जो है नफरत फैलेगा? उर्दू छा जाएगा, ये जो कहने वाले थे, और हुमायूं कबीर जी को ये बाबर के बाबरी मस्जिद बनाने वाले जो इंटेंशन है, दोनों ही एक है। इनका इंटेंशन यही है, जो बांग्ला में जो बांग्ला बोलने वाले संस्कृति वाला जो है, चाहे उसका हिंदू कहिए और चाहे बांग्ला बोलने वाले मुस्लिम भी कहिए, इस संस्कृति को ध्वंस करने वाला जो आदमी है, इसको विलुप्त होना चाहिए, विलुप्त होना चाहिए, क्योंकि ये बांग्ला के जो संस्कृति है ये विरोधी है। विरोध का ये संस्कृति का जो आदमी जो है, इनका आदमी का नहीं, उसका इंट्यूशन एंड इंटेंशनल, ये विलुप्त होना चाहिए, ध्वंस हो जाना चाहिए, और उसको समझना चाहिए ये बंगाल में नहीं चलेगा। अच्छा सर, एक आज जो है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता दिलीप घोष, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जय बांग्ला तो बोलती है, लेकिन जय माँ काली क्यों नहीं बोलती? जय बांग्ला जो है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश का नारा है, और वो जय बांग्ला करती है। देखिए, बोलने वाला सामने जो नारा लगाते हैं वो एक तरीका भी होता ही है, लेकिन उसका पीछे उद्देश्य क्या है? ये तो उर्दू छा जाएगा, उसका ही तो आदमी है ना, उर्दू छा जाएगा उसका ही आदमी है, तो उसका इंटेंशन क्या है ये सबको समझना चाहिए। जय बांग्ला ये
हमारे जो बांग्लादेश है अवामी लीग का वजह उसका वो था जय बांग्ला, क्योंकि बांग्लादेश की यह नारा था। ग्रेटर बांग्ला का मतलब वो बांग्लादेश, इसमें जैसे एसआईआर के विरोध, इतना विरोध क्या है, डेमोग्राफिक जो चेंज है इस चेंज लेके की विषय है। उसके लिए ममता जी अगर काम करना चाहते हैं तो उनका विषय है। बांग्ला के जो आदमी है उनका सचेतन होना चाहिए। हम लोगों का क्या है, एज ए एडवोकेट इसका जो हमको देखते हैं हम तो वही बोलेंगे ना, जो इसके विषय में सचेतन हो रहना चाहिए। क्योंकि जो आदमी बांग्लादेश से यहाँ पर आए, जो सीए किस लिए हुआ है, आज बांग्लादेश में 6 धर्मावलंबी रह नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे वो माइनॉरिटी हो जा रहा है और उसका अत्याचार के कारण वो छोड़ के यहाँ पे आ रहा है। ये सीए को तो क्या अच्छी अच्छी करके किसने बताया, तो क्यों, किस लिए? इसके कारण बांग्ला का जो संस्कृति है, इस संस्कृति को उर्दू में चेंज करवाना है। ये उनका जो दल का आदमी का जो एजेंडा है, इस एजेंडा में हुमायूं कबीर का भी मिलते हैं, चुलते हैं। इस दोनों लेकर बांग्ला को जो संस्कृति है, बांग्ला कहने वाला जीवनानंद दास, सत्येंद्रनाथ दत्त, रविंद्रनाथ ठाकुर, इन लोगों का जो बांग्ला शब्द है इसको ध्वंस करने वाला जो है, इसका तो विलुप्त होना चाहिए। उसमें बांग्ला में जय बांग्ला भी कहो, अगर उर्दू छा जाएगा तो जय बांग्ला भी नहीं रहेगा। अच्छा, कैसे बोलेंगे जय बांग्ला, कह सकते हैं क्या? अगर उर्दू छा जाएगा, माँ माटी मानुष, कह सकते हैं क्या? उर्दू में बोलिए तो माँ का कैसे उच्चारण होगा, माटी को क्या होगा और मानुष को भी क्या होगा? जो तृणमूल का आदमी है वो भी कह नहीं सकते हैं। इस विषय में बांग्ला विषय का, बांग्ला शब्द का ये सवाल उठता है, गंभीरता के सामने सोचना चाहिए कि जो ममता बनर्जी कहती है कि हम प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे सकते हैं, अमित शाह को टक्कर दे सकते हैं, उन ममता बनर्जी में जो है इतनी हिम्मत नहीं आ रही है कि वो हुमायूं कबीर को रोक सके और ये बाबरी के नाम पर जो एक दंगा क्रिएट करने का माहौल बनाया जा रहा है, उन सब पर जो है रोकथाम लगाया जा सके। बियॉन्ड द स्क्रीन व्हाट इज कंटिन्यूइंग, ये वही कह सकते हैं। पर्दा के पीछे क्या इंटेंशन और इंट्यूशन है, वो दीदी वही कह सकते हैं। मतलब दीदी के मन में तो सब चल ही रहा है, बस चल ही रहा है, देखते रहिए। दादा आखिरी सवाल जी, আমাদের বাংলায় একটা কথা আছে, একটা প্রবাদ আছে, ও টাইগার है ना, বাঘের পিঠে চড়া খুব সহজ, লেকিন বাঘের পিঠ থেকে নামা খুব শক্ত। ও দিদির অবস্থা এরকম হয়েছে। এই যে হুমায়ুন কবির है ना, ওকে কেউ চিনতো না। দিদি নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ওকে পার্টিকুলার একটা ধর্মীয় নেতা দিদি ওকে তৈরি করেছে। শুধু এই এখন নয়, ও দিদির দলে এমএলএ থাকা অবস্থায় একজন এমএলএ হিসেবে, সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে যে কথা আমরা চিন্তা করতে লজ্জা পাই, মনে মনে হুমায়ুন কবিরের মুখ দিয়ে দিদি সেই কথা প্রকাশ্য জনসমাবেশে গর্বের সঙ্গে বলেছেন, যেটা আমরা সাধারণ মানুষরা মনে চিন্তা করতে লজ্জা পাই, সেটা উনি হুমায়ুন কবিরকে দিয়ে বলিয়েছেন। তা এই যে বাঘের পিঠে চড়া, নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে উনি ওকে বাঘের পিঠে চড়িয়ে দিয়েছেন। এখন বাঘের পিঠ থেকে নামলে বাঘ ওনাকে খেয়ে ফেলবে। এই যে পরিস্থিতি, এর জন্য দিদিই দায়ী, অন্য কেউ দায়ী নয়। क्या कहेंगे सर जो कह रहे हैं दादा? बंगाली में एक कहावत है, जिस आदमी बाघ के ऊपर चढ़ते हैं, चढ़ना बहुत आसान नहीं है, लेकिन चढ़ते हैं, चढ़ जाते भी हैं। ये आसान है, किससे? उसके उतरने वाला, जो उतरने का समय होगा ना, तब अब समझ में आएगा कि चढ़ना तो सहज हो गया था, अभी उतरना बहुत मुश्किल हो गया। अभी जो स्थिति है, ये हुमायूं कबीर ने, ये बाघ इसको दीदी ने बनाया था। उसको दीदी ने चढ़ा थे बाघ के ऊपर। अब दीदी को समझ में आ रहा है हम उतरेंगे कैसे।
ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए हमारे साथ वकीलों की लॉबी है और इन्होंने जिस तरीके से अपनी बातें रखी, बहरहाल अब पश्चिम बंगाल में क्या माहौल रहने वाला है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से हर मुद्दे पर हर तरीके से यहाँ पर सुगबुगाहट तेज है, हर चीज़ की चर्चा हो रही है कि आखिर सड़क से लेकर विधानसभा तक मुद्दा क्या होना चाहिए और इन तमाम मुद्दों के बीच क्या आम जनता का जो मुद्दा है, जो युवाओं का मुद्दा है, जो बेरोजगारों का मुद्दा है, जो शिक्षकों का मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं दब तो नहीं रहा। इन तमाम मुद्दों पर हम हर जगह से चर्चा कर रहे हैं। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं विनायक कुमार, 9 to 9 खबर।